Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम मैम। वालेकुम Hello. अस्सलाम। अच्छा जी। अच्छा, अब today we will be doing lecture number 14 and 15. Short lectures हैं और बहुत basic चीज़ें हैं। इसमें ज़्यादा we will be studying about anatomy, ठीक है? तो जो आपने already पढ़ी है, just go through it quickly today. Deformities of shoulder and upper limb. ठीक है? Sprengels shoulder होता है, dupuytren's contracture होता है, cubitus varus and valgus होता है, ठीक है? अच्छा, ये देखिए जी, this is Sprengel's shoulder. It is a congenital anomaly which arises of interruption of normal caudal migration of scapula and is characterized by elevation and medial rotation. So basically Sprengel's shoulder में होता क्या है कि अब अगर आप लोगों को याद हो कि एक स्ट्रक्चर ले डाउन होता है और उसकी बेसिस पे फिर आगे डिफरेंट चीजें बनती हैं इन अ फीटस इन मतलब जब एक बेबी होता है व्हेन ही इज इन द मदर्स वूम, तो उस वक्त वो सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है? और अब होता क्या है, कॉर्डल माइग्रेशन ऑफ स्कैपुला नहीं होती, ठीक है? या फिर आप सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप याद रखो कि देयर इज एलिवेशन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर, ठीक है? एलिवेशन है एंड मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर हो गया, तो दिस इज स्प्रेंगल्स शोल्डर। ये देखिए जी, ये है आपका स्प्रेंगल्स। अगर आप बच्चे को कहोगे कि प्लीज रेज बोथ ऑफ योर हैंड्स, तो वो जो अफेक्टेड स्कैपुला है ना, अफेक्टेड साइड है जिसपे स्कैपुला, ये देखें, ये स्कैपुला यहाँ पे थोड़ी ऊपर हुई हुई है, ये नॉर्मल है, तो देयर इज एलिवेशन ऑफ स्कैपुला एंड मीडियल रोटेशन ऑफ स्कैपुला। गॉट इट? दिस इज स्प्रेंगल्स शोल्डर. It is the most common congenital malformation of shoulder girdle. Age, mostly it is noticed at birth. Equal distribution in both sexes. Left side is more common than the right. So left Sprengel's shoulder is more common. It is a sporadic condition. Rarely autosomal dominant भी हो सकती है. अच्छा, अब इसके embryology देखें तो scapula is a cervical appendage that normally differentiates opposite the C4, C5, C6 vertebrae at 5 weeks of gestation. And it descends to thorax by the end of 3rd month of intrauterine life. Interruption in normal migration of scapula, ये जो descend होता है, ये 3rd month of intrauterine life, fetus का जो 3rd month चल रहा था, उसमें अगर स्कैपुला माइग्रेट करके अपनी जगह पे नहीं आता, जो स्कैपुला का अपेंडेज पड़ा है ना, वो C4, C5, C6 पे पड़ा है, ठीक है? अब उसने माइग्रेट करके नॉर्मल अपनी जो जगह है स्कैपुला की वहां पे आना है, थॉरिक्स, ठीक है? अगर ये माइग्रेशन नहीं होती, स्कैपुला रिमेन्स elevated, giving rise to Sprengel deformity. Pathophysiology occurs between 9th and 12 weeks of gestation, and there is an arrest in development of bone, cartilage, and muscle. ना bone बनेगी, ना cartilage, ना muscle. Trapezius, तो अब जो muscles जो scapula के साथ attached होते हैं, trapezius है, rhomboid है, levator scapulae, they may be absent. ठीक है? They may be hypertrophied. Serratus anterior may be weak, leading to winging of scapula. Other muscles like pect major, latissimus dorsi, sternocleidomastoid, they may also be absent or they may be hypertrophied. अब आप ये देखो बच्चों, ये स्कैपुला इस तरह से होगी, ठीक है? As you see, नीचे वाली पिक्चर में this is a normal scapula, but ये स्कैपुला है आपकी dysplastic scapula. This is higher than normal. It is smaller in the vertical plane and larger horizontally. Horizontally larger as compared to the vertical. Inferior angle is rotated medially, causing the glenoid to face inferior. Convexity of the upper portion of the scapula is increased. अब ये वो सारी चीजें basically अगर हम
यूनिवर्सिटी में होते हैं, ऑन कैंपस होते हैं, सो आई वुड हैव ब्रॉट अ स्कैपुला। फिर उसको वहां से चीजें एक्सप्लेन करना जरूरी है, बट अब ऑब्वियसली सारी चीजें याद करने वाली होती हैं। सर्जरी और एनाटमी समहाउ थोड़े बहुत ड्राई सब्जेक्ट्स इसलिए भी होते हैं, ये चीजें याद करने वाली ज्यादा होती है। बट जो लोग सर्जरीज परफॉर्म करते हैं उनको फिर वैसे ही चीजें ऑन देयर टिप्स हो जाती, ठीक है, ऑन देयर टिप्स। अच्छा जी, अच्छा, स्प्रेंगल्स शोल्डर अगर किसी भी बच्चे को हो तो उसके साथ साथ और कौन कौन सी एनॉमलीज हो सकती हैं, एसोसिएटेड एनॉमलीज, जिसके अंदर स्पाइन की स्पाइना बाइफिडा आ जाता है, क्लिपल फील एनॉमली होती है एक, आउट ऑफ योर कोर्स हेमीवर्टिब्रा होता है, स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस हमने पढ़ा हुआ है, रिब्स में सर्वाइकल रिब हो सकती है, रिब्स की फ्यूजन हो सकती है, ओमोवर्टिब्रल बोन हो सकती है विच इज अ रोम्बॉइड or trapezoid shaped structure of cartilage or bone, and it usually lies in a strong facial sheath which extends from the supramedial border of the scapula to the spinous processes. ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा बोन होती है which is extending down from the scapula to the spine. Clinical features में cosmetically it scapula will be higher in position, scoliosis, torticollis हो सकता है, caput obsteosum हो सकता है which is asymmetric distortion of the skull. इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, कभी रियल लाइफ में अगर देखने का मौका मिला तो देख सकते हो। आई हैव नेवर सीन caput obtuosum. फेशियल एसिमेट्री हो सकती है साथ साथ। फंक्शनल में ऑब्वियसली सबसे बड़ी बात है कि जो स्कैपुला का फंक्शन है, जो इसकी जो रोटेशन होती है या मूवमेंट होती है ओवर द थॉरिक्स, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है। और स्कैपुला इज आल्सो मेकिंग अ जॉइंट विद द ह्यूमरस, इट इज मेकिंग अ शोल्डर जॉइंट, तो उसकी भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। जब सेवेरिटी होती है जी ग्रेड 1, 2, 3, 4, वेरी माइल्ड, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। जिनमें माइल्ड होता है स्प्रेंगल शोल्डर, शोल्डर्स एक लेवल पे होते हैं, ठीक है, डिफॉर्मिटीज इनविजिबल व्हेन द पेशेंट इज ड्रेस्ड। Mild में shoulders are almost at the same level and deformity is visible as a lump in the web of the neck when the patient is dressed. Grade 3 में shoulder will be elevated for around 2 to 5 centimeters. Deformity is visible. Grade 4 में shoulder joint is elevated and superior angle of scapula is near the occiput. ठीक है, डायग्नोसिस आप ऑब्वियसली एक्सरे लेते हो, ये देखें, ये पॉइंट है जी, ये जो लेफ्ट साइड का स्कैपुला, ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड का स्कैपुला, ये देखिए ये नॉर्मल स्कैपुला है और ये स्कैपुला कितना ज्यादा रेज हुआ है। तो ऑब्वियसली जो चीज बहुत ज्यादा ऊपर रेज हुई भी होगी तो वो फिर इट विल बी विजिबल एज अ हम्प, ठीक है। सीटी स्कैन अगर आप करवाओ तो सीटी स्कैन से फर्दर पता चलेगा कि सराउंडिंग स्ट्रक्चर मसल अफेक्ट हुआ है या फिर ऑल्सो हेल्प अस इन प्लानिंग आउट सर्जरी। अच्छा, आप सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं स्प्रेंगल शोल्डर की, फर्स्ट फैक्टर्स हैव टू बी असेस्ड। हम सर्जरी करने से पहले हमें देखना होता है डिफॉर्मिटी कितनी सिवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है, कितना ज्यादा फंक्शनल इम्पेयरमेंट है, क्या चीज करेक्ट करने वाली है, एज देखनी होती है पेशेंट की, कोई कोमॉर्बिड कंडीशन को, हाइपरटेंशन, कोई और एसोसिएटेड कंडीशन तो नहीं है। तो सर्जरी इज बेस्ट एडवाइसेबल फॉर अ पेशेंट बिटवीन 3 and 8 years of age with moderate or severe cosmetic or functional deformity, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ, अगर स्प्रेंगल शोल्डर के साथ पेशेंट को कोई और कंजेनिटल अनॉमली है तो देन सर्जरी परफॉर्म करने का मकसद खत्म हो जाता है। सर्जिकल इंटरवेंशन बिफोर द एज ऑफ 2 years इज एक्सटेंसिव एंड इट इज टेक्निकली मोर डिफिकल्ट बिकॉज जब बच्चे की उम्र 2 साल से कम होती है, एक तो कार्टिलेज स्ट्रक्चर ज्यादा होता है उसकी बॉडी में, बोन्स की फ्यूजन नहीं होती, बोनी जो प्राइमरी फ्यूजन सेंटर्स है उनकी फ्यूजन नहीं होती, तो इट विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल द बेबी 2 साल से जो कम का बच्चा होता है। ओके, अब सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होता है? सर्जिकल ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स, हमने पहला काम ये करना है कि
अब जो स्कैपुला की बेसिकली स्कैपुला को उसकी जगह पे वापस लाना, वी हैव टू शिफ्ट इट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एंड इसके साथ साथ जो स्कैपुला के साथ जो मसल्स अटैच्ड हैं वो भी हमने वापस उनकी जगह पे स्टिच बैक करने होते हैं। रीसेक्शन ऑफ द सुपीरियर medial border and omovertebral bar resection, ठीक है। अगर उसके अंदर ओमोवर्टिब्रल बोन है उसकी भी रिसेक्शन करनी पड़ती है, और जो उसका सुपीरियर मीडियल बॉर्डर है जो स्पाइन के साथ होता है उसको भी हमने रीसेक्ट करना पड़ता है। अच्छा, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, वंस आपने सर्जरी कर दी, सर्जरी से उसको करेक्ट कर दिया, तो कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं? एक है जी विंगिंग ऑफ स्कैपुला, जिसमें रिजल्ट फ्रॉम इनकम्प्लीट रीअटैचमेंट ऑफ सेराटस इंटीरियर मसल। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है, कीलॉइड फॉर्मेशन है। ये भी कीलॉइड क्या होता है? स्कार। अब एक नॉर्मली स्कार हील होता है, वेल एंड गुड। अगर स्कार प्रॉपर्ली हील नहीं हो रहा, वहां पे स्कार टिश्यू वेल डेवलप हो गया, नोड्यूल्स बन गए हैं स्कार टिश्यू के, उसको कीलॉइड कहते हैं। इट इज अ वेरी कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी इंजरी, ठीक है। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो सकती है इसमें जी। फिजियोथेरेपी आफ्टर सर्जरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। ग्रेजुअल रिलैक्स्ड पैसिव मोबिलाइजेशन ऑफ शोल्डर एंड स्कैपुला, आपने एक्सरसाइजेस करानी है, मोबिलाइजेशन करानी है स्कैपुला एंड शोल्डर की, पैसिव मोबिलाइजेशन। suitable pain relieving modality like TENS, IFT, hydrocollator packs may be used to induce relaxation. Special attention is given to achieve early mobility of scapula and shoulder abduction and elevation. Overall mobilization and strengthening of shoulder girdle muscles. So our main function is to mobilize the shoulder joint. Our main function is to mobilize the muscles. हमने मसल का जो शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट है उसको भी इम्प्रूव करना है, साथ साथ जो मसल्स है उनको भी स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जी डुपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर। डुपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर इज अ प्रोलिफरेटिव फाइब्रोप्लेजिया ऑफ सबक्यूटेनियस पामर टिश्यू। पाम के अंदर जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है ना, जो पामर फेशिया भी होता है, उसका फाइब्रोप्लेजिया हो जाता है। उसका बेसिकली अब मैं आपको क्या, जो उसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू है, वो उसकी कंट्रैक्शन हो जाती है, वो कनेक्टिव टिश्यू रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब जब हाथ के पाम के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो डेफिनेटली जो फिंगर्स हैं वो भी फ्लेक्शन में चली जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा ओवरलाइन सबक्यूटेनियस फैट की थिनिंग होती है, देयर इज एडिशन टू स्किन, लेटर पिटिंग और डिम्पलिंग ऑफ द स्किन। ये देखें जी, ये अगर ये फेशियल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो फिंगर है उनकी फ्लेक्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब डुपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर में बी एसोसिएटेड विद डायबिटीज mellitus, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, HIV पेशेंट्स में हो सकता है, जिनको एपिलेप्सी होती है एंड दे यूजिंग phenobarbital, इट कुड बी अ साइड इफेक्ट ऑफ phenobarbital ड्रग। ट्रॉमा हो सकता है, मैनुअल लेबर, रोमेटॉइड डिजीज। अब पेशेंट्स को पहले ना छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं। फर्स्ट दे नोटिस टेंडर नोड्यूल्स ऑन देयर पामर कॉर्ड, ठीक है। अब बाद में उन नोड्यूल्स की फ्यूजन होती है, नोड्यूल्स की फ्यूजन होती है, फेशिया हार्ड हो जाता है, फेशिया कॉन्ट्रैक्शन में चला जाता है, एंड जो मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स हैं दे विल बी अफेक्टेड फर्स्ट, ठीक है, एंड रिंग एंड स्मॉल फिंगर आर अफेक्टेड। ऑलराइट, ये देखिए, पहले यहाँ पे छोटे छोटे नोड्यूल्स बनेंगे, फिर नोड्यूल्स फ्यूज होंगे, फिर यहाँ पे प्रॉपर फेशिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और ये मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स हैं, ठीक है। मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स पे जो टेंडन्स हैं, जो फेशिया अटैच हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिंग और लिटिल फिंगर वो फ्लेक्शन में चले जाए, ठीक है। एट्रोफिक ग्रूव्स और पिट्स इन द स्किन, ठीक है, ये जैसे ग्रूविंग हो रही है। और इसके अलावा आपने ग्रेडिंग करनी होती है, ग्रेड 1, 2 एंड 3, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। ग्रेड 1 में यू कैन सी अ थिकन नोड्यूल, ये आपको डायग्राम में यहाँ पे ये थिकन नोड्यूल नजर आ रहा होगा, बैंड। इसकी वजह से स्किन is being attached to the nodule, स्किन की फुल या फ्री मूवमेंट खत्म हो गई है,
बट द फिंगर्स आर मूविंग फुल, फिंगर की जो एबडक्शन एडक्शन है वो सही है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। ग्रेड 2 में अब देखो, ग्रेड 2 में एक्सटेंड हो गई है, ये जो नोड्यूल है ये फर्दर बढ़ता जा रहा है, रिंग फिंगर तक चला गया। अब रिंग फिंगर की जो मूवमेंट है वो लिमिट हो गई है। सो मूवमेंट की जब लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है वो ग्रेड 2 है। ग्रेड 3 में प्रॉपर जब फिंगर फ्लेक्स हो जाएगी उसको कहते हैं ग्रेड 3। बेसिक पैथोलॉजी जी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं जिन्होंने और जो कोलेजन नेटवर्क होता है, टोटल कोलेजन, टाइप 3 कोलेजन, ग्लाइकोज, अमाइनोग्लाइकन, ये जो सारा नेटवर्क है जो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स बना रहे हैं, इन सब की स्कारिंग स्टार्ट हो जाती है, इन सब में नोड्यूल स्टार्ट हो जाते हैं। मायोफाइब्रोब्लास्ट आर द हिस्टोलॉजिकल हॉलमार्क ऑफ डिपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्शन। अगर आप ये जो नोड्यूल है इसको कट करो अंडर द माइक्रोस्कोप, इसको देखो, so you will see that these myofibroblasts will be extensively seen on this slide. ठीक है, अब पैथोजेनेसिस है। पैथोजेनेसिस में क्या है जी? देयर मे बी लोकल इस्कीमिया एट द माइक्रोवास्कुलर लेवल, मतलब जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, कोई एक लेवल पे वेसल डैमेज हो गई है तो उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो वहां पे फाइब्रोब्लास्ट आना शुरू हो जाएंगे, एंड फाइब्रोब्लास्ट विल देन फॉर्म कॉर्ड्स, ठीक है, वो छोटे छोटे नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे। सो आप इसको बेसिकली आपने याद करना है कि इट इज ट्रिगर्ड बाय इस्कीमिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये प्लाज्मा डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर and tissue derived growth factor B, they will all increase the collagen production. Excessive collagen भी अच्छा नहीं होता बॉडी में, excessive collagen से contractures बनते हैं, and myofibroblasts are more sensitive, ठीक है। अब पेशेंट आपके पास आया, ऑब्वियसली आप उसकी हिस्ट्री लोगी, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, पॉजिटिव टेबल टॉप टेस्ट करते हो, ये देखिए आप पेशेंट को कहते हो जी अपना हाथ टेबल के ऊपर रखो सीधा। अब आप खुद अगर जहां भी बैठे हो, जस्ट अगर आप लोग अपना पूरा हाथ एक फ्लैट सरफेस पे रख सकते हो, बट ये लोग अपने फ्लैट सरफेस के ऊपर हाथ प्रॉपर्ली, दीज पेशेंट्स दे विल नॉट बी एबल टू पुट द हैंड properly place their hand on the table. This is known as negative tabletop test. You see नीचे टेबल टॉप है, ये देखिए ये नीचे स्ट्रेट है, ये पूरा एंगल बन रहा है, ये ऐसे। अच्छा जी, अगर तो ग्रेड 1 है, अभी सिर्फ नोड्यूल बना है, तो हम उसी नोड्यूल में उसी एरिया में कोलैजनेज इंजेक्शंस लगा सकते हैं या गामा इंटरफेरॉन इंजेक्शंस लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो कोलेजन ब्रेकडाउन स्टार्ट होगा एंड होपफुली वो नोड्यूल डिसॉल्व हो जाए। बट अगर ग्रेड 3 है, कॉन्ट्रैक्चर्स बनना शुरू हो गए हैं और प्रॉपर फ्लेक्शन में चली गई है, फिर आपने फिशियोटमी, फिशिएक्टमी कर सकते हो। आपने वो जो कोलेजन है, वो कॉर्ड है, उसको रिसेक्ट कर दो, उसको ब्रेक कर दो, ठीक है। अगर मजीद चीजें खराब हो गई हैं, आप फिशिएक्टमी नहीं कर सकते, फिर एट टाइम्स आपको एम्पूटेट भी करनी पड़ती है वो फिंगर, बट यहाँ एम्पूटेशन तक सवाल ही नहीं जाता, आप सिर्फ फिशिएक्टमी करके जॉइंट रिसेक्शन और जॉइंट की आप रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। जॉइंट रिपेयर भी हो जाता है, वही जो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है। हर सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि इस सर्जरी में कुछ इंट्रा ऑपरेटिव होंगी कि दौरान ऑपरेशन के दौरान ऑपरेशन हो रहा हो, सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है ब्लीडिंग, सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है हीमाटोमा फॉर्मेशन। उसके अलावा कोई नर्व डैमेज हो सकती है, कोई ब्लड वेसल डैमेज हो सकती है, ठीक है। ऑपरेशन के बाद भी पेशेंट कंप्लायंस होती है। अगर पेशेंट को बताया जाता है कि मूवमेंट, जो फिजियोथेरेपी, जो जो चीजें पेशेंट को जिस हिसाब से बताई जाएंगी, अगर पेशेंट कंप्लाई नहीं करता प्रॉपरली, एंड नॉर्मली डिपिट्रेंस कॉन्ट्रैक्चर अप टू 63% रिकरेंस है, ठीक है। फिर आ जाते हैं क्यूबिटस वेरिस पे। अब क्यूबिटस वेरिस इज द फोरआर्म व्हिच इज डेविएटेड इनवर्ड्स with respect to arm at the elbow with resulting lateral angulation and full extension. अब आप इस डायग्राम में देखो, ये है नॉर्मल कैरिंग एंगल होता है फीमेल्स में और मेल्स में। फीमेल्स में 10 to 15% होता है और मेल्स में 10 to 15 डिग्री होता है और मेल्स में 5 डिग्री होता है, ठीक है।
cubitus veris है when the forearm is deviated inwards. मतलब ये जो एंगल है नॉर्मल मेल्स में भी कम हो जाएगा और फीमेल में भी कम हो जाएगा. सो रिडक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल valgus 5 to 15 डिग्री. ठीक है जी. ये देखें जी नॉर्मल आप देख लो क्या है. नॉर्मल 5 डिग्री का है फीमेल मेल्स में एंड 10 to 15 डिग्री फीमेल्स में. बट क्यूबिटस वैल्गस में वो मजीद डेविएट हो जाता है एंड क्यूबिटस वेरिस में वो you know it will be abducted, मतलब it will be towards the body. ठीक है. ओके जी. देन वी हैव अ गन स्टॉक डिफॉर्मिटी भी इसको कहते हैं क्यूबिटस वेरिस को. ये आप देख सकते हो ये ऐसे है. ये जो एंगल है ये ऐसे है जैसे कि एक गन का स्टॉक के साथ एक एंगल होता है. सो इट लुक्स लाइक लोडिंग स्टॉक ऑफ ओल्ड लॉन्ग बैरल गन्स, इसलिए इसको आप गन स्टॉक डिफॉर्मिटी भी कहते हैं. क्यूबिटस वेरिस में कॉजेस क्या हैं? Most common cause is malunited supracondylar humerus fracture. This is very important guys, बहुत important है ये. MCQs में ये हमारे टाइम पे भी बहुत important था cubitus veris. ये it is because of malunited supracondylar humerus fracture. Most commonly after the fracture होता है. ठीक है. supracondylar fracture हुआ, malunion हुआ. इन्फेक्टिव कॉज में मीडियल ग्रोथ प्लेट डैमेज हो सकता है. वैस्कुलर कॉज में ट्रोक्लिया का नेक्रोसिस हो सकती है. ट्रॉमेटिक कॉज में लैटरल कॉन्डाइल का फ्रैक्चर हो सकता है. नियोप्लास्टिक कैंसर हो सकता है. जेनिटल में क्यूबिटस वेरिस में इट इज ग्रेडेड बाय सेवेरिटी. ग्रेड 1 में लॉस ऑफ फिजियोलॉजिकल valgus एंगल है. ग्रेड 2 में 0 to 10 डिग्रीज ऑफ वेरिस है. ग्रेड 3 में 11 to 20 डिग्रीज है. ग्रेड 4 में मोर देन 20 डिग्रीज. ठीक है. डायग्नोसिस, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जाम, एक्सरे इज वेरी कॉमन. वैसे हम फिजिकल एग्जामिनेशन पे ही क्यूबिटस वेरिस को डायग्नोज कर लेते हैं, बट सिर्फ टू सपोर्ट आवर डायग्नोसिस वी गो फॉर एन एक्सरे. इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? ट्रीटमेंट ऑप्शंस इंक्लूड ऑब्जर्वेशन विद एक्सपेक्टेंट रीमॉडलिंग. हम करेक्टिव ऑस्टियोटमी कर सकते हैं. हम सर्जरी करके वो जो बोन है उस जॉइंट को रिपेयर करके बोन को वापस इसकी जगह पे ला सकते हैं. हेमी एपिफिजियोडेसिस एंड ग्रोथ ऑल्टरेशन कर सकते हैं. ठीक है. क्यूबिटस वेरिस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, सर्जरी की कॉम्प्लिकेशंस, ऑस्टियोटमी, सबसे कॉमन जो इसका ट्रीटमेंट है ना वो सर्जरी ही होता है, करेक्टिव सर्जरी. इसमें हमारे पास स्टिफनेस आ जाती है, नर्व इंजरी है, प्रेसिस्टेंट डिफॉर्मिटी है, रिकरेंट डिफॉर्मिटी है, नॉन यूनियन हो सकता है, ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, अनसेटिस्फैक्टरी स्कार हो गया. एक होता है जी सूडो क्यूबिटस वेरिस. अब सूडो क्यूबिटस वेरिस जो है ये क्यूबिटस वेरिस नहीं होता बट इट इज फॉल्स क्यूबिटस वेरिस. इसमें होता ये है कि जो पेरियोस्टियम होता है ना वो एलिवेट हो जाता है. बोन का पेरियोस्टियम एलिवेटेड हो जाता है एंड वहां पे न्यू बोन फॉर्मेशन. अब लेट्स सपोज लैटरल कॉन्डाइल का ह्यूमरल फ्रैक्चर हुआ है. ठीक है. वहां पे अब यूनियन के दौरान एक नई बोन बनना शुरू हो गई है वहां पे ड्यू टू एलिवेशन ऑफ पेरियोस्टियम एंड न्यू बोन फॉर्मेशन. ठीक है. तो वहां पे बेसिकली लैटरल बल्ज, न्यू बोन होती है, एंगल सेम रहता है बट लैटरली एक बल्ज होता है. अच्छा. क्यूबिटस वाल्गस इज व्हेन कैरिंग एंगल इज इंक्रीज्ड so that the forearm is abducted excessively. This is known as cubitus valgus. Yeah? ये cubitus veris दिखा रहे हैं, ये नॉर्मल है और ये valgus दिखा रहे हैं. ठीक है. So angle more than 15 degrees will be cubitus valgus. Angle less than 5 degrees will be cubitus veris. अब cubitus valgus में if you guys see previous fracture of lower end of humerus is the cause. और वही बात है लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ, यूनियन के दौरान बोन सही तरह से जुड़ नहीं पाई, तो या तो क्यूबिटस वेरिस हो जाएगा या क्यूबिटस
वैल्गस हो जाएगा। अब टर्नर सिंड्रोम होता है उन पेशेंट्स में जिनके अंदर सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, उनके अंदर भी क्यूबिटस वैल्गस कॉमन होता है। विजिबल डिफेक्ट है, कॉस्मेटिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, नर्व पाल्सी हो सकती है इन पेशेंट्स को। क्यूबिटस वैल्गस के डायग्नोसिस में हिस्ट्री है, फिजिकल एग्जामिनेशन है, एक्सरे है। टार्डी नर्व पाल्सी क्या होती है? इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रोमैटिक अल्नर न्यूराइटिस, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन न्यूराइटिस। अब बेसिकली बच्चों क्यूबिटस वैल्गस में होता ये है कि अल्नर नर्व जो है वो बार बार फ्रिक्शन के साथ मीडियल एपिकॉन्डाइल के जस्ट अंडरनीथ द मीडियल एपिकॉन्डाइल हमें पता है अल्नर नर्व है। अब जब क्यूबिटस वैल्गस में बार बार मूवमेंट होगी ना, वो जो नर्व है वो बोन के अगेंस्ट फ्रिक्शन क्रिएट करके नर्व इन्फ्लेम हो जाती है, इसको कहते हैं टार्डी नर्व पेल, ठीक है। तो टिंगलिंग एंड नमनेस होगी इन मिडिल एंड रिंग पे, सॉरी रिंग एंड लेटिस, ये इसका एक ड्रॉबैक होता है, इसकी एक कॉम्प्लिकेशन। अच्छा, इसमें जो डिफॉर्मिटी है हम ऑस्टियोटमी कर सकते हैं एंड ट्रीटमेंट में टार्डी नर्व पैल्सी की ट्रीटमेंट में हम एक सर्जरी करके वो जो अल्नर नर्व की प्लेसमेंट चेंज करते हैं, इंटीरियर ट्रांसपोजिशन, ठीक हो गया। सो दिस वाज लेक्चर नंबर 14 आई गेस, ठीक है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? No, ma'am. ऑलराइट, सो डू यू गाइस No, वांट टू ma'am. डू लेक्चर नंबर 15? वो भी बिल्कुल ऐसे ही है, क्यूबिटस वेरस वैल्गस है, वो हम एक बार कर लेते हैं। ओके, आई थिंक वी डू लेक्चर नंबर 15 बाद में। अच्छा बच्चों, आई माइट हैव टू रिकॉर्ड अ फ्यू लेक्चर्स, मे बी मैं लेक्चर नंबर 15 या लेक्चर नंबर 16 इकट्ठा रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग डाल दूंगी, सो दैट यू गाइज कैन लिसन टू द रिकॉर्डिंग, ठीक है। आई होप यू गाइज हैव नो इश्यूज विद दिस। Yes, ma'am. हाँ ठीक, तो आई विल बी रिकॉर्डिंग अ फ्यू लेक्चर्स बिकॉज अब आपके टोटल हैं जी 18 या 19 लेक्चर्स, ठीक है। तो Okay, ma'am. या आई विल बी रिकॉर्डिंग दोज लेक्चर्स, अ फ्यू ऑफ देम, ठीक है। हाँ, ताकि हम बिफोर टाइम पे सिलेबस फिनिश कर लें और हम रिविजन्स भी करें, ठीक है। बिकॉज आपके मिड्स आई थिंक बाय टुडे और टुमारो सबको टाइम टेबल भी मिल जाएगा अपने मिड्स का। ओके, चलें जी, मैं सबको प्रेजेंट मार्क कर देती हूँ, जो जो प्रेजेंट है। 47 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ऑलराइट। मैम, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी, मैम, मिड में कितने लेक्चर्स इंक्लूडेड होंगे? मिड में आपका हाफ सिलेबस इंक्लूड, मैम फर्स्ट 10 हाफ। लेक्चर। ओके मैम, थैंक यू। फिर बाकी आप बाद में फाइनल्स के लिए प्रिपेयर करें। चलें जी, ऑलराइट बच्चों, टेक केयर एवरीवन। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।